नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कर्नाटका हाई कोर्ट की एक रीसेंट रूलिंग के बारे में बात करेंगे। कर्नाटका हाई कोर्ट ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के केस में एक बहुत ही इंसाइटफुल रूलिंग दिया है फॉर इश्यूएंस ऑफ टीडीएस लोअर रिडक्शन सर्टिफिकेट। सो देखते हैं क्या है। जजमेंट्स में जाने से पहले हम एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, जब हम नॉन रेजिडेंट को कोई पेमेंट करते हैं तो सेक्शन 195 में टीडीएस काटना पड़ता है एट अप्रोप्रिएट रेट। So, Section 195 casts an obligation on payer to deduct TDS before making payment to non-resident assessee if such income is chargeable to tax under this Act. However, person responsible for making such payment considers that whole or part of such sum would not be liable to tax in hands of the non-resident. He may make an application in prescribed form to AO to determine appropriate proportion or appropriate rate on which TDS to be deducted. ठीक है, लेकिन अगर पेमेंट करने से पहले हम देखें कि नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है या सम प्रपोर्शन टैक्सेबल नहीं है, तो हम असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 195 सब सेक्शन 2 के तहत एप्लीकेशन कर सकते हैं कि उसका टीडीएस लोअर डिडक्शन लोअर रेट पे काटे या फिर ना काटे। So recently, the Honorable Karnataka High Court has delivered an insightful ruling on this subject. After duly considering facts on the case and hearing pleas of both the parties on a legal ground, the SC directed to issue nil rate deduction certificate under Section 195(2) to the appellant. In this ruling, the court made several remarkable observations on applicability of Section 195 vis-a-vis Section 9 and DTAA. So देखते हैं कि facts of the case क्या है। Let's see brief facts of the case. Appellant Flipkart Internet Private Limited filed application to issue certificate of no reduction of tax at source in connection with the payments to be made to the US-based entity Walmart Incorporation. Appellant was of the view that the nature of payments were pure reimbursement of salary paid to the second-hand employees of the Walmart, hence no TDS required to be deducted. On the other hand, revenue contended that Section 195(2) envisages for the appropriate proportion on which TDS to be deducted and does not contemplate for nil rate. They further argued that the said payments in question would fall in category of fees for technical services as defined under Section 914. अब इस केस में वॉलमार्ट जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को इंडिया में भेजा था फ्लिपकार्ट इंटरनेट में काम करने के लिए सेकंड हैंड एम्प्लॉयज़ के तहत। और वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि वॉलमार्ट अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी पे करेंगे उसका रियम्बर्समेंट फ्लिपकार्ट देगी ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस, कोई मार्कअप ऐड नहीं होगा। सो फ्लिपकार्ट ने डिपार्टमेंट के सामने इस पेमेंट में टीडीएस ना करने के लिए एप्लीकेशन दिया था कि फ्लिपकार्ट को नील रेट डिडक्शन का सर्टिफिकेट इशू किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ प्योर रियम्बर्समेंट है, इसमें कोई मार्कअप नहीं है वॉलमार्ट का, तो वॉलमार्ट की कोई इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। सो फ्लिपकार्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एनी टीडीएस ऑन सच पेमेंट। ठीक है, बट डिपार्टमेंट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि वॉलमार्ट की इनकम फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, सो इस पे टीडीएस कटेगा, ये एग्जाम्प्ट नहीं होगी यहाँ इस पे। सो उन्होंने नील रेट को डिडक्शन को सर्टिफिकेट इशू करने से मना कर दिया और इसके तहत फ्लिपकार्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की अगेंस्ट दिस ऑर्डर। अब हाई कोर्ट में फ्लिपकार्ट ने क्या बोला देखते हैं। काउंसिल अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर पुट फॉरवर्ड फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स ऑन देयर बिहाफ। The payments in nature of reimbursement cannot be charged as income under this Act. Petitioner has paid only actual cost of salaries of second-hand employees, and there is no markup which is written by the Walmart. Walmart Incorporation being tax resident of the USA, disputed tax transaction is governed by the provision of DTAA in view of the Section 92 of this Act. Further, in terms of Article 12 of the FTS fees for included services, the present payments are out of purview of Article 12. फ्लिपकार्ट ने ऐसा बोला कि प्योर रियम्बर्समेंट है, उसमें वॉलमार्ट का कोई मार्कअप नहीं है, तो ये इनकम वॉलमार्ट की इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। फर्दर अगर वॉलमार्ट है तो वो यूएस बेस्ड कंपनी है,
तो आपको टैक्सेबिलिटी देखनी है तो आपको इंडिया यूएसए की ट्रीटी भी देखनी पड़ेगी, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता है कि अगर ट्रीटी में कोई प्रोविजन है विच इज़ बेनिफिशियल टू द एसएससी, तो वो ही एप्लीकेबल होगी और वो एक्ट को ओवरराइड करेगी। तो वैसे ही एक प्रोविजन है इंडिया यूएसए ट्रीटी में आर्टिकल 12 फीस फॉर इंक्लूडेड सर्विसेज। सो इसमें फीस फॉर इंक्लूडेड सर्विसेज में है कि मेक अवेलेबल क्लोज है। सो अगर वो फुलफिल नहीं होती है क्लोज, तो जो रिसिपिएंट है उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। और इस केस में तो प्योर रिइंबर्समेंट है, तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं होगी। तो यही सब पिटिशनर ने हाई कोर्ट में बोला। उसके अगेंस्ट रेवेन्यू ने क्या कंटेंशंस दिया, लेट्स सी। Counsel appeared on behalf of the revenue, put forward following arguments on their behalf. There is no employer-employee relationship between Flipkart and seconded employees. Even if the consideration is agreed on cost-to-cost basis, the character of the payment won't change. The purpose of payment, if looked into, fall within the ambit of FTS in terms of the Section 9 as well as DTAA. Deduction of tax at source under Section 192 will not take away the applicability of the appropriate section. रेवेन्यू के स्ट्रॉन्ग कंटेंशंस थे कि फ्लिपकार्ट और सेकेंडेड एम्प्लॉयज़ के बीच एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। हालांकि फ्लिपकार्ट ने क्लियर किया कि उसका जो सेकेंडेड एम्प्लॉयज़ है वॉलमार्ट के, उसका पीएपी वही काट के भरता है। स्टिल रेवेन्यू होल्ड्स दैट इट्स व्यू कि वो सैलरी नहीं है, इट इज़ प्योर एफटीएस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 9। सो इट इज़ टैक्सेबल इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ द वॉलमार्ट, सो टीडीएस कटेगा। अब देखते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या बोला। कर्नाटका हाईकोर्ट ने एसएससी की फेवर में रूलिंग देते हुए 3 महत्वपूर्ण मुद्दे दिए हैं इस केस में। पहला है एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर फाइल अंडर सेक्शन 192(5) इज मेंटेनेबल। दूसरा है पिटिशनर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 192(5) रेड विथ आर्टिकल 12(4) ऑफ द इंडिया यूएसए डीटीएए। और तीसरा है डिडक्शन इज ऑन इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स एंड नॉट ऑन ग्रॉस रिसिप्ट्स। रेवेन्यू ने फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन उस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दी थी कि एप्लीकेंट 195(2) में नील रेट डिडक्शन की सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन नहीं कर सकता है। लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला अगर नॉन रेसिडेंट रेसिपिएंट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रेट विद द डीटीएए, तो ऑफ कोर्स एप्लीकेंट नील रेट की डिडक्शन की भी एप्लीकेशन कर सकता है। फिर दूसरा मुद्दा था पिटिशनर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर उसको सैलरी ना मानकर एफटीएस भी माने तो भी इंडिया यूएसए की डीटीएए के तहत वो फीस फॉर इंक्लूडेड सर्विस आएगी। और फीस फॉर इंक्लूडेड सर्विस में जो मेक अवेलेबल क्लोज है इंडिया यूएसए ट्रीटी में, वो इस पेमेंट को एप्लीकेबल नहीं होती है। तो पिटिशनर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, फ्लिपकार्ट को टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और तीसरा है डिडक्शन इज ऑन इनकम चार्जेबल टू टैक्स एंड नॉट ऑन ग्रॉस रिसिप्ट्स। रेवेन्यू का ऐसा कंटेंशन था कि टीडीएस ग्रॉस रिसिप्ट पे काटना चाहिए, ना कि नेट पे। बट हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि सेक्शन 195 में इनकम चार्जेबल टू टैक्स पर को यूज़ किया गया है, यानी नॉन रेसिडेंट की जो इनकम विच इज़ ऑफ कोर्स नेट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो नेट इनकम है जो इंडिया में चार्जेबल है उस पर ही टैक्स कटेगा, अनलाइक अदर सेक्शन। टीडीएस के हम अदर सेक्शंस देखें जैसे कि 194 है, 194I है, जे है, उसमें ग्रॉस रिसिप्ट पे करता है, रेंट है, प्रोफेशनल फीस है, जो ग्रॉस पेमेंट हम करते हैं उस पे करता है। लेकिन 195 अलग है उन सेक्शन से, उस पर जो नेट इनकम है नॉन रेसिडेंट की उस पर ही टीडीएस करता है। तो हाईकोर्ट ने बोला कि टीडीएस 195 में नेट इनकम पे कटेगा, ना कि क्रॉस पेमेंट पे। I have drawn following conclusions from this decision. One insightful finding came out of this ruling is legislature intent and approach towards withholding obligation as laid in section 195 and other TDS related provision. ठीक है, सेक्शन 95 और दूसरी टीडीएस की प्रोविजन में ये फ़र्क है कि सेक्शन 95 में इनकम विच इज़
लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। नॉन रेसिडेंट की जो नेट इनकम है वो अगर इंडिया में टैक्सेबल है तो ही टीडीएस कटेगा, और उसके ऑपोजिट जो नॉर्मल टीडीएस की प्रोविजंस है उसमें ग्रॉस रिसिप्ट पे टीडीएस कटता है। और टीडीएस काटते वक्त डिडक्टर को ये देखना ज़रूरी नहीं है कि रिसिपिएंट के हैंड में वो इनकम टैक्सेबल है कि नहीं, बट सेक्शन 195 में वो देखना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर रिसिपिएंट के हैंड में इनकम टैक्सेबल नहीं है तो 195 में टीडीएस नहीं कटेगा, जैसे कि इस डिसीजन से साबित हुआ है कि डिडक्टर हैज़ बीन ग्रांटेड नील रेट ऑफ डिडक्शन सर्टिफिकेट। सेकेंड है, unlike other sections related to TDS provisions, Section 195 category gives emphasis to deduct TDS only when such sum is taxable under this act। जैसे कि मैंने कहा, further, in order to determine such taxability, deductor payer is obliged not only to go through provisions of this act, but also provisions of the relevant tax treaty applicable। ठीक है, 195 में TDS काटते हैं तो नॉन रेसिडेंट का टीडीएस काटने से पहले अगर रिलेवेंट ट्रीटी है, इंडिया ने रिस्पेक्टिव कंट्री के साथ कोई ट्रीटी एंटर की है और उसमें कोई बेनिफिशियल प्रोविजन है एप्लीकेबल टू दैट नॉन रेसिडेंट, एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर दैट receipts, then not only you have to see the income tax act but also you have to need to go through that relevant treaty provisions। और अगर treaty provisions मोर बेनिफिशियल है एसएससी को, उस नॉन रेसिडेंट को, तो उसके अकॉर्डिंग 195 की प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होगी। If provisions of such treaty is found more beneficial, then TDS TCS is to be deducted accordingly, even if such TDS results into nil rate of reduction, which is the case here। ठीक है, जैसे कि इस केस में नॉन रेसिडेंट की इंडिया में कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। हाई कोर्ट ने ऐसा बोला कि अगर एफटीएस को भी देखें, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज भी है, तो भी इंडिया यूएसए के ट्रीटी के तहत ये फीस फॉर इंक्लूडेड सर्विस होती है, जो कि मेक अवेलेबल क्लोज में फॉल होती है। और इस केस में ये मेक अवेलेबल क्लोज का कोई इशू है नहीं, ये प्योर रिइंबर्समेंट है, तो कोई टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है, तो डिडक्टर को नील रेट सर्टिफिकेट दे दिया जाए। सो फ्रेंड्स, आपके पास 15 CACB सर्टिफिकेट्स इश्यू करने के लिए आते होंगे, तब आपको सेक्शन 195 की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी पड़ती है और उस टाइम DTAA की रिलेवेंट प्रोविजंस भी आपको देखनी पड़ती है। तब आपको ये डिसीजन काम लग सकता है कि आपको नॉन रेसिडेंट की रिसिपिएंट की टैक्सेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, और इफ़ इज रिक्वायर्ड आप 195(2) में एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।